So, hello, dear students. Today we will solve some problems based on magnetic force and moving charges. The problems are from ISC board problems. They have been asked in previous year board exams. So, we will solve first problem. That is, you can just see on the screen. The problem is this. Figure 4 below shows an infinitely long metallic wire Y dash which is carrying a current I dash and P is a point at a perpendicular distance R from it. You have a wire Y dash and it is carrying a current I dash in upward direction and P is a point at a perpendicular distance R from it. Now first we have to find what is the direction of magnetic flux density B of the magnetic field at the point P. And in second part, we have to find what is the magnitude of magnetic flux density B of the magnetic field at the point P. And in third part, we have to find another metallic wire Mn having length L and carrying a current I is now kept at a point P. अगर कोई एक और वायर Mn को हम रख देते हैं एट पॉइंट P पे जिसका लेंथ L हो और करंट I हो, and if the two wires are in vacuum and parallel to each other, how much force acts on the wire Mn due to the current I dash flowing in the wire Y dash? So these are the three problems. We will proceed for the solution. First, we will solve part 1. So just here you have to find the direction of magnetic flux density B of the magnetic field at the point P. So now we'll proceed for the solution. Before proceeding to the solution, first we will see what is uh, magnetic field density. We will see the definition of what is magnetic field density. Just see magnetic flux density. Magnetic flux density. Flux. Now just see what is magnetic flux density. It just represents the amount of magnetic flux passing through per unit area, and it is represented by B. So B is equal to phi by A. That is amount of magnetic flux passing through per unit area. Here phi is magnetic flux and A is area. Unit is Tesla or Weber per meter square, because phi is magnetic flux and the unit of magnetic flux is Weber. So now, this is all about the magnetic flux density. Now, in first part, we have to determine the direction of magnetic flux density B of the magnetic field at the point P. हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी का डायरेक्शन बताना. अब देखो जस्ट क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी लाइक दिस. ये इनवर्ड जा रहा है और यहां से आउटवर्ड जा रहा है, तो पी पे डायरेक्शन क्या होगी? इट विल बी इनवर्ट और परपेंडिकुलर होता है, इनवर्ट एंड परपेंडिकुलर, inward and perpendicular to the plane of paper. To the plane of paper. ओके, इनवर्ट होगा और परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ पेपर. अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी of the magnetic field at point P. We have to find the magnitude of magnetic flux density. Just see.
अब देखो जस्ट यहाँ पॉइंट पी पे आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। आप देखो जस्ट इसको एम्पियर्स लॉ से डिराइव भी कर सकते हो। एम्पियर्स लॉ क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा और यहां से आप डिराइव कर सकते हो। ओके, यू कैन जस्ट सी इन द बुक। डीएल एक एलिमेंट लेते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी और यहां से जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। करंट आई डैश फ्लो हो रही है तो इट विल बी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया ना। अब हमें थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। वी हैव टू फाइंड द वी हैव टू सॉल्व द थर्ड पार्ट। सी व्हाट इज द थर्ड पार्ट? Another metallic wire Mn having length L and current I is now kept at the point P. तो एक और वायर हम रखते हैं। We will put another wire Mn, just see, ये हमने एक और वायर रख दिया। ये हमारा मिड वाला है। क्या है ये? पॉइंट P है। ओके, एक वायर रख दिया, इसका नाम क्या है? Mn है। तो इट्स नेम इज Mn। जस्ट इट इज M एंड इट इज N। एमएन रख दिया। अब प्रॉब्लम में पूछ रहा है जस्ट इफ टू वायर्स आर इन वैक्यूम एंड पैरेलल टू ईच अदर। वैक्यूम में है एंड पैरेलल है और करंट कितनी है वायर पे? इट इज आई। ओके, इट इज आई और ये डायरेक्शन नहीं बताया है। एमएन पे करंट की डायरेक्शन किधर, अपवर्ड या डाउन? हम अपवर्ड लेके चल रहे हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड द हाउ मच फोर्स एक्ट्स ऑन द वायर एमएन ड्यू टू द करंट आई डैश फ्लोइंग इन द वायर वाई बाई डैश। अब हम ये जानते हैं, we know that we know that moving charges moving charges produces produces magnetic field magnetic field magnetic field in its surrounding its- in its surrounding in its अब देखो जस्ट, अब हम अपने वायर पे आते हैं। ये जो वायर है ये करंट कैरी कर रहा है तो इट मींस चार्जेस आर इन मोशन, सो इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जो वायर एमन है वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा वायर वाई वाई डैश का, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एमन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जस्ट हम फोर्स कैलकुलेट करें, कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है एमन पे। तो जस्ट फोर्स क्या होता है? आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर पी। ना, अब देखो जस्ट वेक्टर एल क्या है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसकी डायरेक्शन किधर होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है। और बी क्या है? इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और पेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो जस्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री। एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो इट विल बी एफ इक्वल टू आई एल बी साइन 91 होता है। ओके, नाउ so here F will become I L B. F will become I L B because sin 91 हो गया। अब यहां पे हमें B फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड।
अब देखो जस्ट, ये वायर वाई वाई डैश है, करंट आई डैश फ्लो हो रही है, तो ये जस्ट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग में। तो जस्ट पॉइंट पी पे एट डिस्टेंस आर पे हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन राइट करेंगे। ये जो वायर एम एन है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द वायर वाई वाई डैश। तो जस्ट यहाँ पे ये हो गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। हम बी की वैल्यू इस फोर्स के एक्सप्रेशन में राइट पुट कर देंगे, तो इट विल बिकम म्यू नॉट आई आई डैश अपॉन 2 पाई आर इंटू एन। So this was the solution of part thought only. Okay. So now we will see another problem. Now just see, students. Uh, it, this is another problem. It is also based on the magnetic force. This is a 2023 board problem. The problem is like this. You have a long straight wire AB, long straight wire AB, and it is carrying a current of 5 ampere. P is a proton traveling with a velocity of 2 into 10 power 6 meter per second, parallel to the wire, 0.2 meter from it, and in a direction opposite to the direction of current. Just see, प्रोटॉन ट्रेवल कर रहा है बट ऑपोजिट है उसकी डायरेक्शन, जो करंट फ्लो कर रही है वायर ए बी में। यू कैन जस्ट सी, कैलकुलेट द फोर्स which magnetic field of the current carrying conductor AB exert on the proton। तो जस्ट हमें वो फोर्स कैलकुलेट करना है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर AB जो है एग्जर्ट करेगा प्रोटॉन पे। तो जस्ट इट इज वेरी सिंपल। सो नाउ वी नो दैट if there is a charge particle of charge Q and is moving with velocity v in a magnetic field B, so the force is given by Q into vector v cross vector p, and you can write it also q vb sin theta. Now we will proceed further। अब देखो यहाँ पे जस्ट यू कैन जस्ट सी इन द फिगर, जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस, ये इनवर्ट होगा। ओके, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज ये जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये इनवर्ड होगा एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और ये वेलोसिटी क्या है, ये जस्ट डाउनवर्ड जा रही है। ओके, तो जस्ट इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा दैट विल बी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इट विल बी जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऐसे जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डाउनवर्ड जा रही है इनटू द पेपर। तो जस्ट उसे आप इमेजिन करो, एंगल विल बी 90 डिग्री एग्जैक्टली, परपेंडिकुलर होगा magnetic field to the plane of paper and invert। So now, so here it will be F is equal to Q VB sin 90 90 डिग्री। F is equal to Q V P। अब हमें वेलोसिटी दिया है, चार्ज दिया है, हम हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं दी, तो जस्ट वी विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जस्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इंटू करंट की वैल्यू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, एंड
2 into pi into r is 0.2 मीटर। तो ये जस्ट 2 से 2 कैंसिल हो गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया। और ये कितना आया? इफ यू विल कैलकुलेट दिस, it will come out to be b is equal to 5 into 10 to the power minus 6 न्यूटन पर एम्पियर एंड पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इतनी आ गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को पुट कर दो फोर्स के एक्सप्रेशन में। तो फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। चार्ज कितना है? हाउ मच इज चार्ज? द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन चार्ज, ये हम जानते हैं, इट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कोलम। वेलोसिटी हमें दी हुई है, हाउ मच इज वेलोसिटी? 2 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। और जस्ट वी नो मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव कैलकुलेटेड दिस, इट इज 5 इंटू 10 to the power -6 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अब इसे जब आप कैलकुलेट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 16 इंटू 10 to the power -19 न्यूटन। इसे कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1.6 16 इंटू 10 पर -19। So this is the solution of this problem. And if you like my problem solving technique, then you can like, share, and subscribe my YouTube channel. That's all. Thank you.